گانا سنانا سنا دو ورنہ میں خان صاحب کے ساتھ کو بات کروں. اللہ تینوں زندگی دے روز خان صاحب کی تو معیشت تے گل کر گئے وہ بھی مراسی نے. چپ کر. یہ لفظ نہیں کہتے یار. کی سینسرشپ شروع ہوگی؟ نہ مراسی کہہ سکتے ہیں نہ خزرے کہہ سکتے ہیں. یقین کرو 7.5-8 لفظ ہے جنہاں چ 2 اے نے. اے کی ایتھے سینسرشپ نویں چھڑی ہوئی. اے ویسے کی ایتھے سینسرشپ ہے؟ اے سینسرشپ والی کی بدماشی ہے؟ اے ویسے سینسرشپ والی کہڑی بدماشی کردا کچھ آ رہا. السلام علیکم. کسوٹیات اوپن مائک کیفے UAE اسپیشل میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور زوم پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں FSJ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہمارے چیلنجر موجود ہیں آل دا وے فرام کویت. السلام علیکم. اجاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس بالکل جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ڈاکٹر روبا کی آواز بھی آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. اجاز صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی. زندہ؟ جی نہیں. ایشیائی؟ جی نہیں. تعلق یورپ سے؟ جی نہیں. امریکہ سے؟ جی. ایک امریکی مرد جو زندہ نہیں ہے. امریکہ تو گویا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جی. انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل. 1973 سے پہلے. 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ نہیں. 1923 سے 1973 کے درمیان. 1923 سے 1973 کے درمیان. 1973 سٹارٹ ہی جو ہے وہ گریٹ ڈپریشن. شعبے پہ جائیں جی. شعبے پہ ایک تو ہو سکتا ہے جی سیاست اور حکومت. دوسرا ہو سکتا ہے علم و فضل. بالکل دونوں چیک کریں. اجاز صاحب وجہ شہرت سیاست اور حکومت ہے؟ جی نہیں. علم و فضل ہے؟ جی نہیں. 10 سوال. شوبز ہے؟ نہیں سر. شوبز بھی نہیں ہے، علم و فضل بھی نہیں ہے، سیاست اور حکومت بھی نہیں ہے. FSJ isn't it alarming؟ پھر رہ گیا بگ بزنس. بگ بزنس ہم آلموسٹ کر چکے ہیں سارا. آلموسٹ کر چکے ہیں. ابھی کیا نہیں، ہم نے پوچھا نہیں ہے. نہیں، جتنی اہم شخصیات ہیں نا اس دور کی، میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہم موسٹلی کر چکے ہیں. لیکن ادھر ادھر بھی دیکھیے، سپورٹس کی طرف دیکھیے. اس دوران کوئی سپورٹس میں تو کوئی خاص شخصیت نہیں ہے. 1936 اولمپکس میں جیسی اوون جو افریقن امریکن تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے جا کے وہاں میڈلز جیتے تھے اور بڑا تہلکہ تھا. نہیں سر، نہیں، وہ کوئی غیر معروف شخصیت ہے. وہ ہمارے حساب سے نہیں، آپ ذرا ویورز کے حساب سے دیکھیں. اچھا جی، یہ شور ہے کہ پہلے نہیں ہو چکی شخصیت. جی سر. دیکھیں باکسرز ہیں. باکسرز ہی ہیں، میں نے بڑا غور کیا تھا. باکسرز ہی نون باکسرز ہیں. سونی لسٹن آتا ہے. فریزیر تو بعد میں بھی رہا ہے. جی جی بالکل. راکی مارسیانو بہت بڑا باکسر تھا. ہاں جی، راکی مارسیانو. ٹھیک ہے نا، وہ جو اٹالین سٹالین کی فلمیں جو بنا دی تھی راکی. وہ تو راکی بولبا نہیں تھا وہ کیا؟ وہ تو ویسے وہ تو فکشنل نیم تھا نا. اچھا ہاں، مارسیانو. ٹھیک ٹھیک. ہاں وہ اٹالین وہ تھا. ریجنگ بل فلم بھی بنی. ریجنگ بل بنائی تھی اس نے رابرٹ ڈینیرو نے. رابرٹ ڈی نیرو نے اس میں ایز دا رول پلے کیا تھا جیک لا موٹا کا. ٹھیک ہے نا، ہو واز نون ایز دا ریجنگ بل. تو اسپورٹس کو دیکھیں. اسپورٹس میں باکسنگ کے علاوہ سوال کتنے ہوئے ہمارے؟ 11 سوال. ہم ایرا کو اور نیرو ڈاؤن اگر کریں. اور نیرو ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے. 75 ایئرز پہ چلے جائیں. 50 اور 100 کے بیچ ہے نا جی یہ. جی جی بالکل. اجاز صاحب انتقال کو 75 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی بالکل. 1923 سے 1948 کے درمیان. 45 ایئرز سے زیادہ. اس کا مطلب ہے 23 سے لے کر 48 تک. 48 تک. ورلڈ وار 2 اس میں آتی ہے پوری سر. ورلڈ وار 2 کا کیریکٹر ہے. ہاں بٹ یہ وہ نہیں ہے، سیاست اور حکومت. سیاست اور حکومت نہیں ہے. وہ جرنیل نہیں ہو سکتا. جنرل نہیں ہو سکتا. کوئی ڈپلومیٹ کوئی ذہن میں، وہ تو حکومت ہوگی نا. پھر ڈپلومیٹ تو حکومت ہوگی. روزن برگز اس کے بعد ہیں، وہ 50s میں. روزن برگ تو 50s میں ہے سر. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا. شعبہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. ہم نے
शोबिस नहीं पूछा, हमने स्पोर्ट्स नहीं पूछा। सर यहाँ पर तो स्पोर्ट्स के इम्कानात और मादूम हो गए। ये कोई एक किसी वाक़े की बिना पर मशहूर है सर, ये शख्स किसी वाक़े की बिना पर, अच्छा, अपेरेंटली ऐसा ही लगता है। पूछ लें कोई इवेंट से मशहूर है। अभी सोच लेना, उस दौर के इवेंट्स तो सोचें आप, थोड़ा सा 23 से ऊपर आते जाएं, आगे आएंगे ना जब है ये यूएस का। आप आइए ग्रेट डिप्रेशन के आसपास 29 से ऑनवर्ड्स ग्रेट डिप्रेशन का आगाज हो गया था। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल, यू आर। क्रैश ऑफ 29 था ना जी, द क्रैश ऑफ 29। रूजवेल्ट उस पीरियड में है। रोजवेल्ट के दौर की कोई शख्सियत, उस दौर का कोई, देखे ना जी, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, को मशहूर। अच्छा, इसी दौरान साथ साथ पैरेलल चल रहा था सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट बाद में आया है। ये जो ना पीरियड वो है, ये न्यू डील वाला पीरियड है। न्यू डील तो इसके नतीजे में हुई ना जी, लेकिन साथ साथ ब्लैक्स का इस्तेहसाल जो है ना, ब्लैक्स का, अफ्रीकन अमेरिकन का इस्तेहसाल साथ साथ जारी रहा। फिर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, वो इल्म फजल के उसमें आ जाते हैं। इल्म फजल इन्होंने कहा नहीं है। ये ज़हन में आपने रखना है, ये जो पीरियड है 23 से 48 का, ये उसकी वफात का पीरियड है। जी died in this period, जी died in this period, which means he must have started much earlier. मच अर्लियर, प्रीवियस He सेंचुरी। started, हाँ, 1870s 1880s, वहां से कहानी कहीं से शुरू होती है। और ये कह रहे हैं कि पहले नहीं हुआ हुआ। पहले नहीं हुआ, बिल्कुल। इसलिए कोई वाकया हो सकता है, कोई तहरीक, कोई मजहबी मामलात, कोई मारमेंट्स, कोई ऐसी बिल्कुल कोई पोशीदा एस्पेक्ट, कोई राइटर उस दौर, लेकिन ये कहते हैं इल्म फजल नहीं है। इल्म फजल नहीं है। ये मारूफ शख्सियत है। एक तो बहुत बड़ा नाम जो है उस पीरियड का चार्ल्स लिंडबर्ग है, हाँ ठीक है ना, जो फ्लायर था। जी। वो अनोला गे, अनोला नहीं, अनोला गे तो वो था ना जिसने न्यूक्लियर ड्रॉप किया, स्पिरिट ऑफ सेंट लुई कहना चाह रहा हूं मैं। और इसका बेटा किडनैप हुआ था। बहुत मशहूर इंसिडेंट था जी 1920s का, चार्ल्स लिंडबर्ग का। जी एक तो चार्ल्स लिंडबर्ग, मैं स्पिरिट ऑफ सेंट लुई कहना चाह रहा था, वो मेरे ज़हन वो निकल गया। ही वाज लॉस्ट ओवर द अटलांटिक। जी आई हैव सीन दैट एयरक्राफ्ट। हाँ, उसमें है ना, स्मिथसोनियन में। जी स्मिथसोनियन में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, पूछे, फ्लायर है। सर देख लें कि कुछ और भी, तो उसको शॉर्टलिस्ट कर लें, शॉर्टलिस्ट कर ले, चलें आगे चलें। आप आइए 23 से ऑनवर्ड्स है ना, 23 के आसपास उसकी डेथ हुई होगी। उससे पहले की शख्सियत ज़रा है सर, आप मोनरो के बाद, वो है ना, दैट इज अगेन। सर मैकिनले को मारा था जिसने, प्रेसिडेंट मैकिनले को जिसने मारा था। अगर आप कह रहे हैं कि जी उसका किलर है, तो उसका भी ताल्लुक फिर सियासत हुकूमत से तो बन ही जाता है नहीं, कि उसने अगर एक प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया है। नहीं, वो सियासत और हुकूमत से ताल्लुक बिलवास्ता हो सकता है, वो कोई ऐसा नहीं। अच्छा जी। बैड रिप्यूट जो है, या कोई वाकया, देखें अगर हम एक वाकया पूछते हैं ना, तो इसमें लिंडनबर्ग भी आ जाता है। चलें, पूछे। एजाज साहब, इसकी वजह शोहरत कोई वाकया है? जी नहीं, ये सारे रूल आउट हो गए सर, अच्छे रह गए हम। शोबिज़ हमने पूछा था एंड ही सेड नो। कोई मौसीकार, कोई क्रिएटर, राइटर, कोई आर्ट में कोई उस दौर का कोई ऐसा अमरीकी तो नहीं ज़हन में आता, कोई आर्टिस्ट। अमेरिकन आर्टिस्ट आपको इतना बड़ा कोई नहीं मिलेगा। राइटर्स हैं, अल्डोस हक्सली है, इस किस्म के राइटर्स। लेकिन सर ही सेज के इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है। लेकिन एजाज साहब, आप जरा इसको रिविजिट कर लें, जरा देखें कि इल्म फजल चूंकि बहुत वाइड फ्रेज है। सर आप उनको डिटेल में बताइए कि इल्म फजल में आप किस किस चीज़ को कंसिडर करते हैं। एक शख्स जिसका ताल्लुक किसी भी तरह इल्मी एक्टिविटी के साथ है, किसी भी तरह अदब के साथ है, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ है, उसका ताल्लुक प्रचार के साथ, रिसर्च के साथ, मज़हब के साथ, तारीख़ के साथ है, तो वो इल्म फजल की कैटेगरी में आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। अगर आप इल्म फजल को एक बड़े सर्कल में ले रहे हैं ना,
तो एक उसमें थोड़ा सा वो टच करता है वो भी। जी जी, बस इतना काफी है एजाज साहब। तो फिर आप कहे ना कि कोई ताल्लुक दूर नजदीक का है इल्म फजल से, बात खत्म हो जाती है। हाँ, इल्म फजल से तलक थोड़ा सा बनता है। चलो बस ठीक है, वी आर ओके विद इट। कोई जरूरी नहीं कि उसका फर्स्ट कजन ही हो, लेकिन बहरहाल जैसे आप समझे कोई शायर है या राइटर है, वो चीज नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, उस दौर के मशाहीर की तरफ आइए सर, क्रोनोलॉजिकली चलिए ना। 23, 24, 25 वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुए, बहुत कम अरसा हुआ, फिर अगली वर्ल्ड वॉर की तैयारियां हो रही हैं। व्हाट अबाउट हुडीनी? मैजिशियन, बट ही इज हंगेरियन। ही इज हंगेरियन बट ही परफॉर्म्ड इन अमेरिका। हाँ, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज इन अमेरिका। यूरोप में भी परफॉर्म किया, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा किया। 26 इज द ईयर, 1926 है साल, लेकिन इसको भी आप ईयर मार्क कर लें। ही इज अ परफॉर्मर एंड इसका दूर नजदीक इल्म फजल से ताल्लुक है, क्यों है ना? इल्यूजनिस्ट है, इल्यूजनिस्ट escape है, artist कोई है। एक हद तक हो सकता है, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं वैसे इल्म फजल से मैं समझता। पब्लिक परफॉर्मर पूछ लूं मैं, अगर आप कहते हैं तो? हाँ, पूछ लीजिए। सवाल कितने हुए? 13 क्वेश्चन। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कि वाज ही बाय एनी मींस अ पब्लिक परफॉर्मर आल्सो? जी नहीं। सो ही वाज नॉट हुडीनी। जी जी, बिल्कुल। Yes. अच्छा, आप देखें, बात यह है कि इल्म फजल की जब हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ दैट पीरियड जो बहुत मशहूर हुआ और बाद में उसकी वजह से, क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें हुई, जिसने किताब लिखी थी ओरिजिनली, द प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा उसकी किताब थी, एडवर्ड हाँ। बर्नेज का जो है, जिसको फिर जिसको गोबल्स ने उसके बाद उसकी किताब ही पे उसने सारी अपनी फिलॉसफी जो है वो मरकूज की थी। वो इल्म फजल है सर, प्योर इल्म फजल है। अभी तक हमने डिटर्मिन नहीं किया कि उसकी असल वजह शोहरत क्या है। सर 14 क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकली पीछे चलें, रिवर्स लगाएं 48 से। बट जब तक हम डिटर्मिन नहीं करेंगे कि उसकी असल वजह शोहरत क्या है, तो पीरियड डजंट मैटर। टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक हो सकता है बंदा, अगर ये देखा जाए ना FSJ, तो गो के ये कोई गोल्डन एज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन गोल्डन एज ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद का एरा है जो कि अब तक चल रहा है, गोल्डन ही है। देखिए, एक तो निकोलाई टेस्ला था, वो तो हम कर चुके हैं। जी जी, थॉमस एडिसन है, वो भी कर चुके हैं। वो भी कर चुके हैं। हेनरी फोर्ड भी हम कर चुके हैं, तो बिग बिजनेस में। ग्राहम बेल हुआ है कि नहीं? वो ग्राहम बेल। लेकिन ग्राहम बेल का तो सर ताल्लुक इल्म फजल से, प्योर इल्म फजल से है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। ये ऐसा शख्स है, इल्म फजल के साथ इसका ताल्लुक है जिस पे दो राय हैं कि है या नहीं है या सो है। अच्छा, एक चीज, इस पीरियड में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी हुई। यस यस यस, उसका आर्किटेक्ट, उसका डिजाइनर, वो भी, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाद में आया, बाद में, काफी बाद में, लेकिन पीरियड यही है, 48 से बाद में आया था वो, बहुत बाद। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जो 20s में खड़ी हुई और बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट रहा न्यूयॉर्क में बहुत अरसे तक। किंग कॉन्ग की फिल्म भी बनी, ठीक है ना। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक जहन में आती है कि उसका जो आर्किटेक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे आईफल था ना। अब तक तो ये एक जहन में आया है जो कुछ फिट होता है कि जी ना वो इल्म फजल में आ रहा है, ना वो सियासत और हुकूमत में आ रहा है। बिग बिजनेस की हमने बात ही नहीं की। वैसे सर देखा जाए तो एक वाकया तो है ना, ये एक वाकया के जुमरे में आता है कि उसकी अचीवमेंट, बाकी उसकी कोई भले से ये ना हो, हम तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना, जरा थोड़ा सा एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं या एक दूसरे से एजुकेट हो रहे हैं कि अगर जैसे गस्ताव आइफल है, उसको कोई जानता नहीं है, अगर आप आइफल टावर निकाल लें उसकी जिंदगी में से, वो तो खैर है, ऐसे ही है। ये वाकया के जुमरे में आता है। ये मैं अपने व्यूअर्स की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं, फ्यूचर चैलेंजर्स की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि जब हम गुजारिश करते हैं कि क्या इसके नाम के साथ कोई वाकया मंसूब है, तो फिर कह सकते हैं, इसका जवाब है कि हो सकता है, कह सकते हैं कि ये वाकया तो है। 12 बहुत अरसे तक इट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। उसके बाद फिर शिकागो में सीयर्स टावर बना। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। फिर आइए कोका कोला की तरफ।
کیونکہ یہ پیریڈ وہ ہے نا, آپ ذرا جی جی بالکل دھیان نہیں بالکل ہے. 1922 میں یس جو کوکا کولا کا سی ای او تھا, اس نے بہت بڑی جو ہے ڈسٹریبیوشن جو ہے اس نے, اور اس کی خواہش تھی کہ جہاں بھی کہیں امریکن سولجر جائے تو کوکا کولا اس کو مہیا ہونا چاہیے. جارجیا اٹلانٹا. اٹلانٹا جارجیا سے تھا وہ, مجھے اس کا نام 1922 میں یہ سی ای او بنا تھا کوکا کولا کا. تو بگ بزنس ہو جاتا ہے. جی بگ بزنس ہو جاتا ہے. پھر سی این این. مچ لیٹر. اس کا جو والد ہے نا ٹیڈ ٹرنر کا, اس نے اپنا کام شروع کیا تھا آؤٹ ڈور سے. وہ مجھے اٹلانٹا سے یاد آ گیا. جی جی اٹلانٹا از دی ہیڈ کوارٹرز آف سی این این آلسو. جی جی. تو کوکا کولا کو ذہن میں رکھیے کہ کوکا کولا کا جو کوکا کولا کا جو انوینٹر تھا وہ تو اٹلانٹا میں 80s میں اس نے 1870s 1880s میں اس نے وہ ڈرنک جو ہے نا وہ بنائی تھی کوکا کولا کی. ہی واز اے کیمسٹ. لیکن اس نے مارکیٹ اس کو نیو یارک میں کیا تھا. جب اس نے مشورہ دیا کسی بندے نے, پاسر بائے نے, کہ باٹل اٹ. بگ بزنس کا پوچھ لیں. ایک سوال ہی ہے نا, ضائع ہو جائے گا. چلو اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ وجہ شہرت اس بندے کی بگ بزنس ہے. جی بالکل. دا فرسٹ ایور بریک تھرو. 15 سوال. اچھا بگ بزنس میں آئیے جناب. اب آپ بات کوکا کولا کی طرف جا رہی ہے سر, بڑی تیزی سے جا رہی ہے ادھر. یہ سن وہی بنتا ہے نا 22 23 24, ان کی وہ جو ایک ہائپ اس نے کریٹ کی تھی. کوکا کولا کا انوینٹر کا نام ہے کہیں ذہن میں؟ ہاں لیکن ہی مسٹ ہیو ڈائیڈ ڈیورنگ دس پیریڈ. ہاں ہاں فور شور. تو پھر آپ اس کے سی ای او کو چھوڑے نا, اس کے انوینٹر, his inventor is the man who needs to be remembered in history more. Not the CEO. بالکل Not the CEO. اب کرائسلر زیادہ اہم ہے کہ لی آیا کوکا. کرائسلر. No more questions, Your Honor. ٹھیک ہے جی. کولڈ ڈرنک مینوفیکچرر, کولڈ ڈرنک انوینٹر پوچھیں. We have nothing to lose. اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ اس شخصیت کا تعلق بیوریج انڈسٹری کے ساتھ ہے؟ جی نہیں. نہیں جی, بیوریج انڈسٹری کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بگ بزنس, راکی فیلر سینٹر. راکفیلر سینٹر, یس. امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. ریئل اسٹیٹ کا پوچھیں جی, ابھی ہمارے پاس ہیں سوال. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. راکفیلر نے تو پیچ آف لینڈ دیا تھا یو این او کے لیے, یاد ہے نا؟ یا When he said, I cannot give peace to the world, but I can give a piece of land where they can sit and brood upon peace. اچھا جی, 16 سوال ہو گئے سر, دیکھ لیں. جی. کوئی فارماسیوٹیکل کی طرف نہیں دھیان جاتا؟ فارماسیوٹیکل میں ہیں بڑے امریکن. فائزر ہے. بڑا وقت ڈالا تھا. فائزر, یس. فائزر از لپٹور. کیلوگز ہے, ویسے تو سیریلز ہیں. کیلوگز از اے ویری بگ نیم. کیلوگز, فائزر. فوڈ از کیلوگ. جی. Pfizer is pharmaceutical. Can we reduce it down to food industry? ہاں بالکل کریں. اچھا بھائی جان بتائیے, وجہ شہرت فوڈ انڈسٹری ہے؟ جی نہیں, فوڈ انڈسٹری نہیں. مجھے ریئل اسٹیٹ ہی لگ رہا ہے. فوڈ بھی نکل گیا, بیوریجز بھی نکل گئے. اب ریئل اسٹیٹ میں آئیے تو آپ کو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کا بلڈر, آرکیٹیکٹ, اونر جو بھی ہے, یہ وہ شخص ہونا چاہیے. 3 سوال. ریئل اسٹیٹ میں سر کون آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ وہ ایک ہی بلڈنگ آتی ہے ذہن میں جو میرٹ کرتی ہے. بلڈنگ ایک ہی ہے, اور جو اسٹیچو آف لبرٹی تو فرانس نے گفٹ کیا تھا. جی 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 جی, اور وہ پہلے کی بہت پرانی بات ہے. تو بلڈنگ ایک ہی رہ جاتی ہے نا. یہ دوسری بلڈنگ جو ہے وہ روزویلٹ سینٹر ہے. گھما پھرا کے آئے گی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے آس پاس ہی, کیونکہ اس وقت میری ریڈار پہ یہی ہے, اور اس کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں. لیٹ us go to نیو یارک سر, لیٹ us go مینہٹن. چلیں مینہٹن. How will you phrase the question? Let's not be reckless. دیکھیں نیو یارک میں بلڈنگز کون سی ہیں, ٹھیک ہے نا. there is امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے, آئی بی ایم بلڈنگ ہے, ایک ہیوج بلڈنگ تھی وہ گر گئی ہے.
और तो क्राइसलर थी ना, क्राइसलर जी। बिल्डिंग भी है, IBM भी तो है ना, But more- IBM बिल्कुल उसके साथ IBM बिल्डिंग। IBM है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अच्छा, एक तो वो मेसीज है जो बहुत ही मशहूर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, जी जी जी। जो हर साल मेसीज परेड भी होती है, वो बड़े बड़े ब्लिम्प्स होते हैं। तो मैं पूछ लूं फिर रियल एस्टेट। बिल्कुल पूछ लें। अच्छा जी, वजह शोहरत रियल एस्टेट का कोई लैंडमार्क है? भी है, भी है। वो वजह शोहरत नहीं है, वैसे वो भी है। नहीं समझा नहीं मैं, आपने क्या कहा है? ही सेज के वजह शोहरत नहीं है लेकिन वो भी है, मतलब भी है। मेन वजह शोहरत वो नहीं है। हाँ, वो नहीं। एक तो है क्राइसलर की बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है ना, क्राइसलर इज अ कार कंपनी, ठीक। बट क्राइसलर बिल्डिंग इज अ लैंडमार्क ऑफ न्यूयॉर्क। वो कह रहे हैं ना कि ये भी है लेकिन ये वजह शोहरत नहीं है। जाहिर है क्राइसलर की वजह शोहरत उसकी इमारत नहीं है। बिल्कुल। इस हवाले से वो ठीक कह रहे हैं। IBM और की इसी वजह तरह- शोहरत उसकी इमारत नहीं है। इसी तरह मेसीज जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, बिल्डिंग भी है मेसीज, और डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, और उसकी मशहूर परेड भी है। इन्होंने कहा जी रियल एस्टेट भी है, तो मेसीज का रियल एस्टेट के साथ क्या ताल्लुक है भाईजान? नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेसीज जो है, वो ब्लॉक्स पे बनी हुई है, मल्टीपल लेकिन ब्लॉक्स में, 2 एवेन्यूज के रियल दरमियान है। एस्टेट मैंने कहा था ना, रियल एस्टेट बिजनेस। सीयर्स के साथ भी तो ताल्लुक हो सकता है, खुद सीयर्स हो सकता है सर, व्हाई नॉट सीयर्स? सीयर्स इज शिकागो। यस, ये डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं सर, और सीयर्स होगा मोस्ट प्रोबेबली। सीयर्स भी है, मेसीज भी है। Sears is bigger and Sears broke Empire State Building's record. जी, सीयर्स टावर्स। Sears Tower, और Sears, वो बंदे का नाम Sears, वो इसी दौरान उसका इंतकाल हुआ होगा सर, इसी दौरान। Sears, वो Sears ही है। अच्छा जी, 19वां सवाल मैं दागने लगा हूँ। ठीक है, मैं FSJ ये पूछ लूँ कि इसका मेन बिजनेस जो है ये डिपार्टमेंट स्टोर्स है? हाँ, पूछ लें। क्योंकि इससे दोनों फिर हो जाएंगे, या मेसीज है या सीयर्स है, और जी, मोस्ट प्रोबेबली ये सीयर्स होगा। पूछ लें। या फिर हम इस झंझट से निकल जाएंगे, दोनों तीनों से जान छूट जाएगी। ठीक है, क्या कहते हैं पूछें। सर? फिर हम कंसंट्रेट करेंगे क्राइसलर पर या IBM तो अब रिडंडेंट ही हो गया बिल्कुल ही, उसके नए ऑफशूट्स खुल गए, नई कंपनियां आ गई। अच्छा जनाब, इनकी वजह शोहरत डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं? जी नहीं। ना ये मेसीज है ना ये सीयर्स है। अब पता है क्या करें FSJ? लास्ट ओवर की 2 balls वी नीड 10 runs। 2 बॉलें हैं हमारे पास, अभी 18 हुए हैं। सर एक सवाल पूछना है और एक नाम लेना है। देखें, सवाल पूछेंगे हम, चौका लगाएंगे कि क्या ये ऑटोमोबाइल है, ठीक है, या देखें वो कहेंगे नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है ना, तो फिर हम छक्का लगा सकते हैं अंपायर स्टेट बिल्डिंग का। ठीक है, लगाएं। क्योंकि इसके अलावा कोई और हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, चलें। और जरूरी नहीं हमें हर चीज पे इल्हाम तो नहीं ना होना होता। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है मेरे भाई? जी। आहा ही सेज जी। ये क्राइसलर बिल्डिंग है। आप दिस इज देन FSJ ठहरें जरा, अब हमने नाम लेना है, अब हमने नाम लेना है। बोर्ड हो चुका है। पूरा नाम लेना है। क्यों पूरा नाम क्यों लेना? अच्छा जी, इतने तक ते आ गए ने कि छक्का मार रहा है तो बाहर ग्राउंडों बाहर मारोगे तो ਅਸੀਂ मनांगे। क्राइसलर का पूरा नाम क्या है? FSJ, अगर हम जीत गए ना तो ये मेरी स्ट्रेटजी है जिसने जिताया आपको। बल्कि अल्लाह ना करे हम जीते, ये सारे ने कहना आफ्ताब साहब बड़े खोचल ने यार। वो पहले नहीं मेरी जान छड़ दे। ओ सुहेल अहमद ने ऐसा मैंने मशहूर किया है, याद है ना मुझे, हस्बे हाल में हमेशा खोचल कहता था, उसने मेरा नाम ही खोचल डाला हुआ था। हमने अब सिर्फ जवाब नाम लेना ना। जी हाँ, लेकिन जनाब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि एक स्टेप बाहर निकल आए पहले से ही, और ओवर पिच गेंद को फुल टॉस बनाए और शारजा वाला चक्का लगा दें। अगो अल्लाह मालिक है। लेकिन जनाब आपने हमसे क्राइसलर पूछा है, क्राइसलर जी? जी बिल्कुल।
क्राइजलर का पूरा नाम जो था उस आदमी का वो था वाल्टर पी क्राइजलर। ठीक, वाल्टर पी क्राइसलर, लेकिन असी बुझ लिया है, असी बुझ लिया। वेल डन FSJ, वेल डन इजाज साहब। और मजा इस बात में आया कि आपने आखिरी बॉल पे मैच जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इससे साबित क्या हुआ यंगस्टर्स के लिए कि इट इजंट ओवर टिल इट इज ओवर। आखिरी बिल्कुल। बुलेट तक, आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए। इजाज साहब, थैंक यू वेरी मच सर। वी वुड लव टू सी यू अगेन ऑन द शो। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। जी हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर जूम पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिराज खान है, मैं सऊदी रियाद से बात कर रहा हूँ। शिराज फ्रॉम रियाज। वेलकम टू कसौटी। जी वेलकम टू कसौटी एंड लेट्स स्टार्ट। शख्सियत मर्द है शिराज साहब? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? जी सर। शोबे पे आए। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर। इल्म फजल से? नहीं है सर। ताल्लुक शोबिज से है? जी सर। शोबिज से ताल्लुक है। शोबिज से ताल्लुक है तो गोया वजह शोहरत अदाकारी है? जी सर, अदाकारी भी है। अच्छा, अदाकारी भी है। दूसरी वजह शोहरत अब क्या होगी? FSJ, नीड योर हेल्प। दूसरी वजह शोहरत मौसीकी हो सकती है। अच्छा जी, दूसरी वजह शोहरत मौसीकी है? नो सर। एक्टर एंड डायरेक्टर? शान शाहिद। शान comes to mind. शान शाहिद we have done before. वी हैव डन शान शाहिद बिफोर। अच्छा, we have. हुमायूं सईद? हुमायूं सईद बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि उसने डायरेक्ट कर रखा है। जी जी, डायरेक्ट करता है, वो प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है। ये कहना कि जी अदाकारी भी है तो फिर ये ज्यादती है शान के साथ भी, ये ज्यादती है हुमायूं सईद के साथ भी, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये अदाकार है। बिल्कुल। डायरेक्शन इनका क्लेम टू फेम कभी नहीं है, या डायरेक्शन ये करते हैं इसलिए कि दूसरों की निस्बत ये बेहतर कर लेते हैं, अपने आप को समझते हैं इट इज़ मोर कन्वीनियंट, क्योंकि सेट पे तो होना ही होता है। बुनियादी तौर पर वो अदाकार है। शिराज साहब, इस पे गौर किया आपने? जी सर। इस बारीकी को समझते हुए मेरी बात का जवाब दें कि क्या वजह शोहरत अदाकारी है? अदाकारी भी है। ही इंसिस्ट्स कि अदाकारी भी है। अच्छा FSJ, phrase the question for me. If we have to reach हुमायूं सईद, what would we say? कि पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तान, मैं टीवी कह रहा हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा, हाँ, पाकिस्तानी ड्रामा की इस वक्त बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत ये कह सकते हैं, क्योंकि इतने हैं, और शुक्र है फवाद खान ने मेरा ख्याल कोई डायरेक्ट नहीं किया। एक वो लड़का जो है फैसल कुरैशी है, जो एक्टर भी है, जो डायरेक्टर भी है। जी, मनी बैक गारंटी वाला। मनी बैंक गारंटी वाला। अब ये पूछा जा सकता है कि उनकी एक हालिया फिल्म सुपर फ्लॉप हुई है, ये पूछूं? हाँ, और फैसल कुरैशी जो है वो एक बैंड का भी हिस्सा था। फैसल कुरैशी इंटेलिजेंट बड़ा है, मुखलिया बातें बड़ी मज़े कर लेता है, पैरोडी अच्छी कर लेता है, लेकिन हमें उधर जाना चाहिए हुमायूं सईद की तरफ। पहले उस पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि वी हैव प्लेंटी टू लूज, वी हैव प्लेंटी टू स्पेंड, वी हैव अ सैक फुल ऑफ डॉलर्स। मैं जा रहा हूं उधर मेरे पास तुम हो की तरफ। हाँ ठीक है, चलें। शिराज साहब, ये बताइए कि मेरे पास तुम हो के मरकजी किरदार थे वो? नो सर। तो बात खत्म होगी। फैसल कुरैशी का बैंड था डॉक्टर और बिल्ला। मैंने पूछा म्यूजिक, ही सेज नो। हाँ, म्यूजिक उन्होंने ना की है, इसका मतलब है कंपोजर नहीं है, और ये डायरेक्टर है और एक्टर है। बड़े बड़े मशहूर ड्रामे टीवी के जो इन दिनों, या फिल्में, मौला जट में हमजा अली अब्बासी, फवाद खान। अब्बासी है और फवाद खान है। फवाद खान का ये है कि उसने इंडिया में भी जाके काम किया हुआ, लेकिन सर उसने डायरेक्ट तो नहीं किया कुछ, और वो म्यूजिक के साथ भी है, ही इज अ सिंगर। हाँ, ही इज अ म्यूजिशियन, बिल्कुल। इसका भी एक बैंड है, एंटिटी पैराडाइम था। EP, एंटिटी पैराडाइम। हाँ, परीजाद में कोई ऐसा बंदा, वो डायरेक्टर भी है वैसे,
وہ جو ہے اپنا کیا نام ہے ہمارا دوست, नुमान एजाज. हाँ नुमान इजाज, वो शो होस्ट भी है. وہ شو ہوسٹ بھی ہے. یس, یہ اس کی دوسری وجہ شہرت ہے, اور اداکار وہ بلا کا ہے. तो इसको पार्क करें. اس کو پارک کر لیں سائڈ پہ. کتنے ہو گئے سوال؟ 11. نعمان اجاز کے علاوہ شراز صاحب آپ ہیں کہاں کے ویسے بائی دا وے؟ میں سر لاہور کا ہوں, ساری اسٹڈی اور پیدائش میری لاہور کے, لیکن کچھ عرصہ میں نے سرگودا میں گزارا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. میرے والد صاحب ایئر فورس میں ہوتے تھے سر. अच्छा. Noman stands a fair chance for his hosting also. He has done 2-3 shows. اچھا جی, دوسری وجہ شہرت ہوسٹنگ ہے؟ نو سر. So you rule out Noman Ejaz also. اچھا ہاں, کمیڈین, کامیڈی, بھجن کامیڈی جانرا پہ جائیے. FSJ, how about سہیل احمد؟ बिल्कुल, सोहेल is a strong possibility. لیکن سہیل اس کے علاوہ اداکاری کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ डायरेक्शन का तो मैंने नहीं सुना, स्टेज में ही आता है. وہ تھیٹر کا ہدایت کار رہا ہے. تھیٹر جب کرتا تھا تو ہدایت کاری بھی کرتا تھا, لکھتا بھی تھا. बड़े लगाने शो होस्ट नहीं है. شو ہوسٹ نہیں ہے. تو سہیل احمد ہوسٹ کب ہے؟ ہی از ناٹ اے ہوسٹ, ہی از اے پارٹیسپینٹ. ہوسٹ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی یا باسے ہوتا ہے, یا نعمان ہوتا ہے, یا خاکسار ہوتا ہے, یا جنید سلیم ہوتا ہے. कॉमेडी की तरफ जाए फिर. اچھا جی, یہ بتائیے کہ ان کا جانرا بیسکلی کامیڈی ہے؟ کامیڈی بھی ہے سر. بیسکلی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. سر بھی ہے, ایکٹنگ بھی ہے, کامیڈی بھی ہے. ایکٹنگ بھی ہے, کامیڈی بھی ہے. اس وقت پاکستان میں ایک مشہور شو کا حصہ ہیں. یس سر. حسب حال کی روح رواں ہیں. یس سر. سہیل احمد پوچھا آپ نے. تھینک یو سر. بالکل سر. تھینک یو ویری مچ.